Time management, actually it is a life management, because whatever you do, you must think about where you are wasting time or you are investing time. Your life is totally depend upon how you use your time. See, the God has given everyone time of a 24 hours. Okay, everyone was given by the God, everyone has bestowed by the God beauty in a different color. Everyone has been given a wealth accordingly. Everyone has been given an intellect accordingly, but not the time. Time has been bestowed by the God 24 hours to everyone. As soon as you get up in the morning, God give you in your pocket 24 hours. What you are doing with that 24 hours is your choice. So what you are doing in 24 hours is your choice. Now you must think. See, if we divide time into 3 parts, 8 hours, 8 hours and 8 hours, where we are lacking exactly, that I am telling you. 8 hours that goes for sleep, that is necessary. Okay, 8 hours that are necessary for either your education or for those who are doing job, for their job. 8 hours ड्यूटी रहती है, तो 8 hours ड्यूटी, उसके लिए 8 hours तुम्हारा स्लीप में चला गया, यानी 8 hours you are spending your life, 1/3 of the life in sleep. Clear? हाँ, 1/3 of life you are wasting in sleep. अब 1/3 of your life you are wasting in your job or your education. What you are getting education is not the education for your self development. It will not develop your mind, it will not develop your emotions, and that is most important to go ahead in your life. That is emotional control, emotional independence. That is more important than your marks which are obtained. As already I mentioned before, how much marks I got? Only 50% in the 12th. So it doesn't mean that you cannot excel. You have all the potentials present in you. You can excel. The sky is the limit for you to excel. But what you must develop first is emotional control, and then only you can manage your time. Third thing is, the important part goes to those 8 hours that remains with you. 8 hours in sleep, 8 hours in education or the work, and 8 hours that remains with you. That are the most crucial hours for changing your life. If you take care of those 8 hours, then you can cause revolution in your life. But we are neglecting all those 8 hours. So I am giving an example. If a person is working if a person is sleeping 10 to 6 o'clock, that is 8 hours. By 6 o'clock, he gets up in the morning because he has to go to his work or for your education. Either he has to go to work by 9 o'clock or by 10 o'clock. Am I right? So where the 4 hours are lost? Again he goes there, he spends there 8 hours, he comes back, and after he returns back, he is so tired, सब कुछ वो फेंक देता है और फिर अपना इमोशन भी झाड़ लेता है अपने फैमिली के ऊपर, और इरिटेबल रहता है ना, काम से आया रहता है, तो क्या करेगा बेचारा। और फिर कुछ ना कुछ तो एक तो आइदर ही गोज़ ऑन सीइंग द टीवी न्यूज़ और सर्फिंग द मोबाइल और चैटिंग विद द डिफरेंट पीपल, नॉट चैटिंग विद द फैमिली बट चैटिंग विद द डिफरेंट पीपल। ये सब ऐसे ही करते हुए उसका टाइम जाता है, वो फिर 10 बजे तक वही करता है। सो 4 hours in the morning are lost, 4 hours in the evening are lost, means total 8 hours are lost, where he has to use this time for his self development. Now how he can use for this self development and how you can use that time for your self development, that is more important. See, if your time schedule for getting up in the morning, ये एक ऐसा कहा जाता है ना कि तुमको सूरज जगाता है, तुमको सूरज को जगाना है। समझ में आया? यानी सूरज निकलने से पहले तुमको उठना है, पहली बात। Those who became successful in their life, those who are achievers, those who are accomplished their goal in life,
आपको ऐसा लगता है उनको बड़ी मज़ा आती है सुबह में उठने के लिए, नहीं, they also don't like to get up early in the morning, but somehow they manage to get up early in the morning because they have goal in front of them. What goal you have in front of you? If you don't have any goal, you cannot get up early in the morning. और वो गोल भी कैसे होना चाहिए? पैशनेट गोल होना चाहिए। किसी ने अगर तुम्हारे दिमाग में भर गया है कि तुझे डॉक्टर बनाना है, तो तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है, इफ़ यू डिसाइड योरसेल्फ दैट आई वांट टू बिकम डॉक्टर, फॉर व्हाट? For what? For what? To serve the society. Have a big goal. To serve the society. अगर तुम ऐसा करना चाहते हो और ये डिसाइडेड है, and you make that your thought a dominating thought. Dominating thought means what? The thought which doesn't allow you to sleep at night. ये मुझे करना है, by hook or crook करना है. So how you can utilize your time? Those time, that is the 8 hours that remains with you, that are more important to change your life. So now tell me, how much time you give to yourself to change your life? Forget this what you are studying now, forget what you have studied now till date, but how much time you are giving yourself to improve your thoughts, to improve your morals, to improve your values? How much time you are giving? I tell you, maximum people, they don't give even 5 minutes time to think about what they are doing. नहीं देते। अपने आप को पूछ के देखो कितना टाइम देते हो आप अपने लिए। नहीं देते, हम अपने लिए नहीं देते। मैं टाइम देता हूँ किसके लिए? आई गिव मैक्सिमम टाइम टू गॉसिप, I give maximum time to chat about the people, not about myself, what I am doing, what is my goal, what I have to achieve, what I have to accomplish, what I have decided, how I can go in my life. No, not at all. These type of talks we don't find in our society. कभी देखो कोई बैठा है तो और वो ऐसी बातें करता है कि मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, आपका सजेशन, आप क्या करने वाले हो? ये ऐसा कोई पूछता है? ऐसा कोई बोलता है? नहीं यार। मैं जनाजे पे भी जाता हूँ ना किसी के मरने के, तो ये बात नहीं होती कि मुझे उधर जाना है, वापस जाना है, उसके लिए मैंने आज क्या तैयारी किया है, कुछ भी नहीं रहता। वो तो भूल गए ना। everyone has forgotten our destination. The final destination is where from you have come. That is the God who have sent you, where you have to go. That is your final destination. That is death. And death तो फाइनल है, हम उसमें तो जाना ही है, उसको हम सब भूला बैठे हैं। एंड दिस अ डिसीविंग लाइफ वी आर एंजॉइंग। हम इस लाइफ को ही एंजॉय कर रहे हैं आज। और क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि हमने भुला दिया ना, हु हैज़ क्रिएटेड अस भुला दिया है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ भुला दिया है, सब कुछ हम भूल बैठे हैं। एंड वी आर रेसिंग टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स द थिंग विच वी कांट, विच वी विल नेवर अचीव। कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का सक्सेस है बड़ा सक्सेस है? नो। आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, यू नो। सक्सेस ऐसा नहीं होता है कि मैं एक जगह पर पहुंच गया और चलो अभी मैं सक्सेसफुल हो गया। नो। मैराथन रनर है ना, मैराथन रनर, वो जब भी पहला आ जाता है ना, ओलंपिक में फर्स्ट आ जाता है, समझो जो कोई मैराथन रनर रहेगा ओलंपिक में फर्स्ट आ गया, तो उसको जब वो अपने पोडियम से उतर जाता है ना अपना ट्रॉफी लेके, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 5 years के बाद जब उसको दौड़ना रहता है ना, तो उसको ये कोई नहीं कहता कि चल तू पहला विनर है ना तो 2 कदम आगे से भाग। ऐसा कोई कहता है? नहीं। ही हैज़ टू डू प्रैक्टिस। क्या करना पड़ता है? ही हैज़ टू डू प्रैक्टिस। तुम्हारा वैल्यू ख़त्म हो जाता है। एज सुन एज यू गेट डाउन फ्रॉम योर पोडियम, यू गॉट द विनिंग प्राइज, नाउ यू गॉट डाउन, यू हैव टू प्रैक्टिस टू विन अगेन। मीन्स व्हाट? सक्सेस इज नॉट what you have achieved, success is ongoing process, you can achieve more. So here also you have to observe what, where you are wasting your time, that is important. और अगर इस पे हमारा ध्यान रहेगा कि हम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम प्रॉपर हमारा टाइम यूज़ कर सकते हैं। आज तक तो ऐसा देखा ना हमने, ये यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम किया कि ये कुछ लेक्चर्स है ना जो आज तुम्हारे लिए रखे हैं,
इसकी वजह से पहले ही एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी रखे ना रखे, मगर मैं ये बच्चों को लेता ही हूँ आजकल 1-4-5 साल से। टाइम मैनेजमेंट रहे, तुम्हारा एटीट्यूड रहे, द वे ऑफ थिंकिंग रहे, हाउ टू कंट्रोल इमोशन रहे, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अभी बहुत टाइम है तुमको, और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बताते रहता हूँ, ताकि व्हाट आई वांट मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकलो ना तो एक रोल मॉडल होने के निकलना चाहिए, नॉट ओनली अ डॉक्टर। तुम्हारी थिंकिंग कुछ और होनी चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए। आज तुम्हारी थिंकिंग नैरो होगी ना, तो इससे बहुत बड़ी होनी चाहिए, और जितना तुम बड़ा सोचोगे ना उतना तुम बड़ा बनोगे ना। आदमी क्रिपल होता है किससे? अपने फिज़िकल स्ट्रक्चर लॉस से नहीं होता है, आदमी क्रिपल होता है माइंड से, उसकी थिंकिंग से। अगर उसका थिंकिंग ही छोटा रहेगा ना तो वो तो लंगड़ा हो गया ना पहले ही। वो अगर सोच ही नहीं रहा ना कुछ बड़ा बनने का, तो सी इफ़ यू फॉलो दोज हु आर द रेस्ट ऑफ those who are going, if you go where the rest of the world is going, you will go where they are going. If you want your journey in your life, you have to choose your path, and definitely what you will choose, your path will be of a full of thorns and bushes. Be not afraid of that bushes, but have courage to face all the challenges that comes in the way, in the trajectory of your life. जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा ना उसको उस चैलेंज को स्वीकार करो, उस चैलेंज को फेस करो, उस चैलेंज को उस चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि हाउ यू यूज़ योर टाइम। क्या करना चाहिए सुबह में उठने के बाद कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव कुछ पढ़ना चाहिए। इफ़ यू आर इन हैबिट of getting up in the morning, and as soon as you get up in the morning you just go on surfing your net or WhatsApp and messages, what you are feeding your mind is all the negative things. Suppose you were thinking at night that someone will give you message, and immediately as soon as you open your eyes and to watch whether he has sent a message or not, and if it is not, your whole day will become nervous. Am I right? So why you are doing all these things? Don't do this. Don't feed yourself negative. See, for your body, you are feeding everything good. You like to feed everything good for your development of the body, your physique, but you are not ready to feed your mind, which is more important than the body. You are not ready to take a cognizance of what you are feeding your mind. Be aware of what you are feeding your mind. What you are feeding your mind. If these are the bad news, if these are the games and PUBG and all what surfing in the net with the nude pictures and all nonsense things and all the musics which are nonsense, what music you are hearing now? First thing to avoid is all the media for time management, because once you start in the media, it takes you around half an hour to 1 hour without your recognition that you have lost 1 hour time. This is my observation. I have left watching TV. नहीं देखता मैं, कभी नहीं देखता मैं। अगर देखा कभी डैडी ने लगाया है तो एक 5 मिनट 10 मिनट, कभी तो वंस इन अ ब्लू 5-6 मंथ्स के बाद में। टीवी तो हमारे सामने बहुत बड़ा है, मगर हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ, हाउ यू डिसिप्लिन योर सेल्फ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे सामने तो लग्जरीज बहुत है। देर आर मेनी थिंग्स विच आर अट्रैक्टिव, डेकोरेटिव टू यू, दे आर लुकिंग वेरी गुड टू यू, दे आर नॉट बट टू मेक योर टाइम वेस्ट योर टाइम। ये इसीलिए तो बनाया है ना। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आज बन रही है ना, बहुत अच्छी बन रही है, देखो ना वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारा टाइम चुरा रहे हैं यार। अगर तुम्हारा पैसा कोई चुराए ना तो तुम बना सकते हो, टाइम कहाँ से लाओगे? बोलो मुझे। पैसा बना सकते हो, तुम्हारा शेप बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, घर टूटा तो बना सकते हो, नुकसान हुआ तो फिर से कर सकते हो, मगर
तुम्हारा टाइम अगर किसी ने चुरा लिया तो क्या करोगे? और सबसे बड़ा टाइम चुराने वाला कौन रहता मालूम? तुम्हारे दोस्त। सबसे बड़ा टाइम चुराने वाला कौन रहता? योर कंपनी। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस कंपनी में, इन विच कंपनी यू आर हैंगिंग विथ, जो तुम्हारे आज दोस्त हैं, अगर उनसे कुछ तुम्हें सीखने नहीं मिल रहा है, इफ़ दे आर नॉट डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग इन द लाइफ, दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। मगर हमें समझ में नहीं आता, वो हमें मीठा मीठा खिलाते रहते हैं और हम उनकी कंपनी को एंजॉय करते रहते हैं। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैंने एक घर बांध लिया, बहुत अच्छा है, या तो मैंने एक फ़्लैट ख़रीद लिया, आई परचेस वन फ्लैट, ठीक है, मैंने फ़्लैट ख़रीद लिया और बहुत नया है। एक फ्रेंड आ गया, उसने अपना कचरा लाया और कचरा मेरे, जैसे मेरा ओपनिंग हो गया, लोग गिफ्ट देते हैं, ये आके क्या किया, कचरा डाल दिया, ठीक है। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड था। अब उसके माइंड में कुछ चल रहा था, हो सकता है वो जीलस बन गया हो, ठीक है। उसने वो कचरा लाके मेरे इसमें डाल दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वो नेक्स्ट वीक आ गया और नेक्स्ट वीक आने के बाद में फिर उसने वही किया। सेकेंड टाइम आ गया, कचरा मेरे रूम में आके डाल दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने साफ़ करा लिया। फिर थर्ड टाइम आ गया, फिर थर्ड टाइम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको बोला, भाई ये अच्छा नहीं है, ये मेरा नया घर है और तू इसमें आके कचरा डाल रहा है, हम तो बड़े अच्छे दोस्त थे और आज तू ये काम कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। तो तू क्या कर, कल से तू मेरे सीढ़ी पे आने का ही नहीं, बंद हो जा, आई डोंट वांट यू, क्योंकि तू मेरे अंदर कचरा डाल रहा है घर पे। अब अगर हमारा हाल ये है कि हम घर में कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो आदमी हमारे साथ रह रहा है, मेरा इंटीमेट फ्रेंड है, और रोज़ सुबह शाम आके मेरे इस में भर रहा है, इसको डस्टबिन समझ रहा है और इसमें सब कुछ कचरा भर रहा है, आप उसके साथ क्या करोगे? टेल मी, क्या करना चाहिए ऐसे दोस्तों के साथ? तलाक देनी चाहिए। सीधा सीधा। सी आई हैव नो फ्रेंड्स। मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ इसका रीज़न क्या है? आई हैव नो फ्रेंड्स। फ्रेंड है एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है, मगर उनसे कभी कभार बातें करता हूँ। जब मैं कंटाल जाता हूँ पढ़ के, सोच के, तब उनसे बात करता हूँ। चल यार, आज अब उनका भी मूड होना चाहिए उस वक्त, तो बात करता हूँ। अब बात करता हूँ तो ऐसा कुछ बात करता हूँ कि मैं उनसे कुछ सीखता हूँ और कुछ मैं उनको बताता भी हूँ। गॉसिप नहीं। हाउ वी वेस्ट आवर टाइम? एक तो सबसे पहला है गॉसिपिंग, वेन टॉक, यानी चैटिंग, स्लैंडरिंग दूसरे के बारे में, बैक बाइटिंग दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में ही सब कुछ बातें, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसने ऐसा किया, इसके फलां के बच्चे ने ऐसा किया, फलां के बेटे ने ऐसा किया, फलां के बाप ने ऐसा किया, फलां की माँ ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। इसी में पूरा हमारा समय बर्बाद हो जाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, एक आदमी के बारे में हमने बात करते, वो कौन रहता है? खुद के बारे में कभी बात करोगे भाई? कभी बोला है अपने बारे में किसी से भी? अपने गिरबान में झांक के देखो और टटोलो कि हमने क्या किसको मेरे बारे में बात किया। अरे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तुम क्या बात करोगे? सच बोल रहा हूँ यार, ये मैक्सिमम लोगों की कहानी है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं बोलता हूँ यार, तुम अपने, अभी तुमने जो बड़े लोग रहते हैं ना, तुम अपने बेटे के साथ कभी बैठे हैं 5 मिनट 10 मिनट? उनसे कुछ बात किया है कभी 5-10 मिनट? उनको कुछ टाइम दिया, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम दिया है? तो बोले क्या टाइम देंगे उनके साथ, बात क्या करेंगे? मेरे को बहुत लोगों ने ये आंसर दिया, उनके साथ बात क्या करेंगे। वो इसलिए ऐसा कहा उन्होंने, क्यों? उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा टाइम बर्बाद किस में हो गया? दूसरों के बारे में बात करते हुए। तो ये खुद के बारे में क्या बात करेंगे? वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चे तो वही सीखते हैं जो बाप और उनके यानी माँ बाप जो उनके करते हैं वो सीखते हैं। जब उनको बोला जाता है ना, ये मत कर, झूठ मत बोल, तो वो बोलते हैं झूठ। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं फ़ोन पे बाप झूठ बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है झूठ मत बोल,
पर फ़ोन पे तो बताते टाइम मैं बोल रहा है ये मैं इधर हो ही नहीं, मगर वो है उधर। तो ये बेटे ने देख लिया था। तो दो टाइम वेस्टर कौन है तुम्हारा सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्टर? फ्रेंड्स। दूसरा टाइम वेस्टर कौन है सबसे बड़ा? मोबाइल। यस, पकड़ गए। अब इतना तो समझ रहा है मगर हम करते नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे साथ? व्हाट यू नो दैट यू मस्ट डू, यू शुड डू, यू कुड डू एंड यू डोंट डू। क्या मैं बोला? देखो 4 चीज़ें। यू नो व्हाट यू मस्ट डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू कुड डू बट यू डोंट डू। तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा होने का तुमको सब मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर तुमको ये मालूम होने के बावजूद कि ये मुझे करना चाहिए और तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी? वही चीज़ अगर इफ़ यू नो व्हाट यू मस्ट डू, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू कुड डू एंड यू आर डूइंग। मुझे मालूम है कि यहाँ से अगर मैं रोज़ सुबह में एक 10-15 मिनट यहाँ पे राउंड मारूंगा या 40 मिनट या 50 मिनट में रनिंग करूँगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ये मुझे मालूम है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैंने देखा भी है, मैंने लोगों को भी देखा है ऐसा करते, मैंने सुना भी है, मैंने टीवी में भी देखा है, मैंने मेरे फ्रेंड को भी देखा है ऐसा करते, और मुझे करना चाहिए। मगर कल से, आज नहीं, कल से डेफिनेटली, नेक्स्ट वीक से हम खास करूँगा। प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ ये टाइम मैनेजमेंट का, प्रोक्रास्टिनेशन। क्या कर रहे हो तुम? प्रोक्रास्टिनेशन है आगे रखे रहो। आज का काम कल करूँगा, कभी नहीं होता। मैं कल से करूँगा, मैं कल से ये करूँगा, मैं कल से इसकी दोस्ती नहीं करूँगा, मैं कल से इसको फ़ोन करना बंद करूँगा, मैं कल से मैसेज नहीं करूँगा, मैं कल से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कल से सब कुछ कल से, ये होता है। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ तुमको, नेक्स्ट बात बताता हूँ कि हमारा टाइम जो जाता है ना वो बकवास बातें करते हुए जाता है या तो बकवास कुछ भी पढ़ते हुए भी जाता है। कभी कभी जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है ना, एक बच्ची आई मेरे पास, वो भी डॉक्टर बन रही थी। आई आस्क्ड हर, क्या तू पढ़ती है? बोल, अदर दैन तेरा सिलेबस। मैं तुमको यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अदर देन सिलेबस व्हाट यू आर रीडिंग? नथिंग। अब बोलो मेरे को, एक आध बच्चा निकलेगा जो मैं बोलेगा कि मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ? नहीं, मिलता ही नहीं कोई बच्चा। अदर देन योर सिलेबस व्हाट यू आर रीडिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नथिंग यू आर रीडिंग। तो वो लड़की मुझे बोल रही है, सर मैं नावल पढ़ता हूँ, हॉरर बुक्स पढ़ता हूँ जो रहती है। मैं बोला व्हाट इट इज़ इम्प्रूविंग यू? तो बोले मेरी इंग्लिश बढ़ती है, इंग्लिश अच्छी हो गई मेरी, एंड शी वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं बोला ठीक है, अगर तेरी इंग्लिश अच्छी हो गई ना ये नावल पढ़ते हुए, तो मैं एक तेरे को राह देता हूँ जिससे तेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए और तू भी इम्प्रूव हो जाए। तू ये पढ़ना बंद कर दे और कुछ तो मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, इंस्पिरेशनल ये पढ़ना शुरू कर देना, तो तेरी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी और तेरे थॉट्स भी अच्छे हो जाएंगे। एक तीर से दो निशान, होगा कि नहीं होगा? सो दो, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू यूज्ड टू डू, योर लाइफ विल नेवर चेंज। And if you decide from today that I will not do what I was doing regarding wastage of my time, then your life will drastically change. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और बहुत कुछ बोल सकते हैं, 5 तो बज गए अभी। सो अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर हम फिर बोलेंगे और एक लेक्चर ले लेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यूनिवर्सिटी हैज़ asked us to emphasize about that, and I'm very glad and I'm very thankful to the university that they have suggested such program, and thank you very much.